So you guys can check. We already created getter and setter over here. And this last time we just convert what we convert the an ऑब्जेक्ट इन फाइल, मतलब हमने जावा का जो कोड बनाया था उसके थ्रू हमने क्या करा था, वी जस्ट set some value for name, for age, and then for ID, and it will pass to what? It will pass to the, just a second, huh? And then it will pass to the XML file, and उससे हमने क्या करा था, फाइल को क्रिएट कर लिया था. नाउ we are extracting data. Let's say some other application sending an XML file or XML file to us, and now I want to extract data from that. So here we use some get method. Okay, so for that what we have done in this, so I'm just taking the again 3 or 4 your packages, XML bind packages. Okay, you can say JAX B packages. Not audible. Now Abhijit. अभिजीत बेटा एक बार कनेक्शन चेक करो बेटा अपना, माइट भी वहां पे प्रॉब्लम ना हो. यार कॉपी कहाँ है अब मेरी? मैं कॉपी में भी 1 मिनट. Okay, so in this case what we are doing, we creating a class, and after that we get a file. First we need to need a class, and then we have class object, then class, and here is the location of file. अच्छा खासा काम कर रहा था, बैठा हूँ. Okay, प्रॉब्लम है. okay, fine, good. So this is our location of file. So file.xml file will be saved on a desktop in the folder of XML. So I'm extract this file. I want to extract this file, and I just want to extract only the content of that particular file. I don't want to print tag within that file. So that's why we are again creating a object for the JAX-P, and then here in the previous program we use what? We use marshaller. Now here we use the unmarshaller class. पिछली बार हमने marshaller class यूज करी थी. Here we use unmarshaller, or you can say we demarsh the things. So that's why we are use unmarshaller class. So JAX-P, again I'm taking this object for unmarshalling, और फिर एक object create कर लिया उसका unmarshalling का. Now what the thing that we need to unmarsh, we just creating an object of customer, because मैंने क्या बताया था, we are setting getter and setter over here. So when we are creating a file, that's why we need some annotation over here. So you guys can check, there are annotation on the setting but not on the getting. So when we pass the data, we use get method. But when we are creating or creating an XML file, then we are using what? Then we are using set method. Clear? So here I am having what? I am having customer, an object. Then we call the unmarshal object, and then within that we are taking argument as a file. This one, this object. So मैंने this जो file object है उसको यहाँ पे pass कर दिया, so that it can take the data from this file.xml file, ठीक है, और उसको customer object में convert कर दे. This is a parsing also. इसको हम क्या बोलते हैं? Explicit parsing. जब हम कोई जैसे किसी float को integer में convert करना होता है तो हम यही करते हैं. We just taking brackets, and within brackets we are taking integer, float and all. तो वो यहाँ पे लगा के फिर हम उसको पास कर देते हैं.
Customer is a class, beta. Harshit, this is a class. So we are converting this data into a class object. That's why we are putting over here customer as a customer object. Got it? Now next we have done what? क्या We करूं have भाई? done printing that देख class रहा था। or printing that customer class. Got it? So here you can see in the previous example, what we have done, we have just creating an XML from the object. Now we are creating what? We are creating data or extracting data from the XML file. So if you guys can check, I have saved a ऐसे क्वेश्चन डाले जो उसने खुद नहीं पढ़ा है ना इसके पीपीटी में file.xml over here. So when you open this data, so what we have within this, we have ID, we have age, we have name of your data. So now I just want to extract these data only. I don't want to extract like tag, name and all. In the previous example, लास्ट वीक मैंने आपको क्या बताया था कि उसमें हमारे पास पूरा का पूरा XML फाइल का कंटेंट प्रिंट हो रहा था विद टैग also कि when we are creating an XML file, so how it will look like or how it will pass to another application. So in this case, we just extract the data for our application. That's why we are not going to take the tags and all. So when we are printing this data, so that data will be printed like, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो. You guys can check mine.customer.add उसका ऑब्जेक्ट आ गया. ठीक है. So ये आपका ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया. Now you can take what you can call the different method from the customer.java. ठीक है. आप यहाँ पे customer.java का जैसे मैं let's say just a second, हाँ. So when we want to get age, let's say age. So what we are getting 108. So if you are checking this file, so we'll get to know we are providing 108 over here, and it will automatically print it and extract from the file and printed in the console. Is this clear to everyone? ये ब्रेक ना कर दे बस पागल आदमी क्या कि ब्रेक में बैठ के करो. Customer class का. Okay. No worry about that. We'll explain that. Just a second. Huh? Okay. Done. So let me explain this. तो ये वाली जो क्लास बनाई है ना मैंने, ये क्लास किस लिए है मैं बताता हूँ. मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये बोल सकते हो कि आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुझे डेटा गेट करने के लिए और डेटा भेजने के लिए एक पर्टिकुलर क्लास बनानी पड़ेगी. आप एक क्लास बना दोगे जिसमें डेटा जो है वो आपके अकॉर्डिंग होगा. आप चाहे भेज रहे हो चाहे आप उसको गेट कर रहे हो, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू यू. तो मैंने क्या किया, मैंने वही क्लास बनाई है. इसमें मैंने गेटर और सेटर रखे हैं कि अगर कोई मेरे को फाइल भेजता है तो उसमें से डेटा कैसे गेट करना है, क्या क्या चीजें गेट करनी है, और कोई अगर फाइल मुझे वो फाइल मुझे सेंड करनी है किसी और को, तो मुझे क्या क्या उस फाइल में लिख के भेजना है. ठीक है. मतलब XML फाइल में क्या क्या एट्रीब्यूट होने चाहिए, और अगर कोई फाइल आती है तो उसमें से कौन कौन से एट्रीब्यूट मुझे उठाने हैं, तो वही यहाँ पे मैंने डिफाइन करा है. दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इट एज थ्रू जावा वी आर क्रिएटिंग व्हाट, वी आर क्रिएटिंग अ स्कीमा. तो मैंने क्या किया, आई एम सेटिंग द रूट एलिमेंट इज कस्टमर, एंड कस्टमर में मैंने क्या ले लिया, वी आर टेकिंग 3 more वेरिएबल, नेम, एज एंड आईडी. अब मैंने वेरिएबल ले लिए. अब मैं क्या करूंगा, इनके लिए गेटर और सेटर करूंगा. इफ समवन इज सेंडिंग द डेटा टू मी and then we use get method. If someone wants our data, then we are setting set method.
वी यूज सेट मेथड। तो मैंने एक ही फाइल में दोनों काम कर लिए। मैंने दोनों के लिए स्कीमा बना रही है। अगर मैं किसी से डेटा लेता हूं तो मुझे वो किस स्कीमा में चाहिए, अगर मैं किसी को डेटा देता हूं तो वो मैं किस स्कीमा में भेजूंगा। बिकॉज मेरा अल्टीमेटली मेरे यूएमएस में अगर फर्स्ट कॉलम यूआईडी है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यूआईडी से मतलब है, नेम से मतलब है और एज से मतलब है, मुझे और किसी डेटा से मतलब नहीं है। तो मैं डेटा वही चाहूंगा जो मेरे डेटाबेस में फील्ड बने हुए हैं। ये नहीं है कि मैं कोई भी डेटा उठा के उसको डाल दूंगा। तो इसीलिए मैंने ये स्कीमा डिफाइन कर दी फॉर गेटिंग एंड सेटिंग डेटा फॉर पास। क्योंकि देखो अगर मैं गेटिंग के लिए ये बोल रहा हूं कि अगर मुझे किसी से डेटा लेना है देन वी हैव टू डू व्हाट, देन वी हैव टू सेट सेम कंस्ट्रेंट। एंड अगर मैं किसी को डेटा दूंगा तो इसके अलावा और कंस्ट्रेंट जाएंगे नहीं। ओए सुनो, मेरे को ना मैसेज आईडी नेम और मतलब मेरे को कॉल कर दियो, ठीक है? मैं 1 मिनट आ रहा हूं। और मेरे डेटाबेस में सिर्फ यही 3 है। जब टेस्ट जब शुरू मैं करें ना इसको कॉल कर। एक्सट्रैक्ट करके एक फाइल डिजाइन करूंगा तो वो भी तो वही डेटा लेगा जो मेरे पास मैंने बाकी कंस्ट्रेंट के लिए रखा हुआ है। मतलब उसमें और तो कोई डेटा है नहीं, कोई आईडी और वो, इसीलिए मैंने दोनों के लिए सेम रखे हैं। इफ गेट नेम देन नेम, सेट नेम देन गेट एज, सेट एज एंड गेट आईडी, सेट आईडी। And we are just providing annotation over it. So annotation के लिए आप ये यूज कर सकते हो attribute elements and root elements। तो मतलब आप यहाँ तो यहाँ पे स्टार पुट कर दो तो एक ही बार यूज कर लो, डॉट स्टार पुट कर दो तो तीनों यूज हो जाएंगे। So you have to define over a function over a class। So आपको पहले बताना पड़ेगा कि कौन सी क्लास, customer is my main component। Similarly university is your main component and within university what you have, we have some other elements like name, then age, and then you have one attribute। attribute अलग चीज आ जाती है। attribute मैंने बताया था वो आपके इसके टैग के अंदर आता है। तो कस्टमर आईडी वो एलिमेंट ये है और ये है हमारा एट्रीब्यूट। देखो मैंने 2 फाइल कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ एक ये वाला कस्टमर बना दिया। यस लेट मी एक्सप्लेन दैट। सो एनोटेशंस बेसिकली क्या होते हैं कि जब आप एग्जाम्पल में डेटा डालते हो या फिर आप कई बार ऐसा करते हैं कि बेसिकली एनोटेशन अगर आपने जेएसपी करी है, जावा में जेएसपी करी है तो उसमें आपको पता नहीं मेरे को एनोटेशन पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया, बट विल लेट यू नो कि एनोटेशन क्या रहता है। सो एनोटेशन में क्या होता है, एनोटेशन इज जस्ट फॉर व्हाट, इट इज जस्ट फॉर टू रीच दैट पर्टिकुलर URI और टू क्रिएट समथिंग with the identifier that it is for this। so like यहाँ पे भी एनोटेशन का क्या यूज हो रहा है, ये एनोटेशन बता रही है कि जो कस्टमर क्लास है जिसके ऊपर भी हम लगाते हैं, और एनोटेशन हमेशा ऐसे ही लगता है कि किसी न किसी चीज के ऊपर होता है। लाइक लेट्स से आप क्या बोलते हैं सर्वलेट्स कॉल कर रहे हो या कोई सर्वर है उसको कॉल कर रहे हो और आप ऊपर उसको सर्वर का ऐसे नहीं लिखना चाहते सर्वलेट्स डॉट जावा या सर्वलेट का नाम जो भी है डॉट जावा, तो आप डायरेक्टली उसको नाम से कॉल कर सकते हो। डॉट जावा एक्सटेंशन क्या करवा रहा है ये, बोल तो कुछ ऊपर आप सिर्फ ऊपर क्या लिखोगे @URI और उसका नाम, तो वो उस एनोटेशन से कॉल हो जाता है, उस नाम से कॉल हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल रूट एलिमेंट सेट करा है कि मुझे कस्टमर जो क्लास है मुझे इसको रूट एलिमेंट बनाना है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा उसको जब आपकी फाइल डिजाइन होगी ये ऑटोमेटिकली उसको रूट एलिमेंट सेट कर देगा। ठीक है, ऐसे पेज एनोटेशन होती है, ठीक है, डायरेक्टिव्स एनोटेशन होती हैं, बहुत सारी हैं। वो जेएसपी अगर आप पढ़ोगे तो आपको उसमें सारा एक्सप्लेन होगा कि किस तरह से पेज एनोटेशन क्या काम करता है। पेज एनोटेशन लिंक करता है 2 डॉक्यूमेंट्स को आपस में। जैसे एक जीएसपी पेज है, आपको सर्वलेट पेज को साथ लिंक करना उसको, तो आप उस पेज एनोटेशन में लिंक कर सकते हो। या फिर कई बार आप ऐसा करते हो कि एक पेज में दूसरा पेज इंक्लूड करते हो, तो उसके साथ भी हम वो चीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेज एनोटेशन। तो डिफरेंट एनोटेशन डिफरेंट चीजों के लिए यूज होती है। अब ये वाली एनोटेशन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है इसका, कि ये स्पेसिफाई कर रही है कि जब एक फाइल डिजाइन होगी तो
वो क्या करेगी, मतलब उसमें जो एलिमेंट्स या जो डेटा जा रहा है वो उसका क्या बता रही है, उसकी हायरार्की और उसको आइडेंटिफाई करवा रही है कि ये रूट एलिमेंट है, ये इसका चाइल्ड एलिमेंट है, ये पेरेंट एलिमेंट है, ये इस तरह से। क्लियर? सो मतलब हर एक एनोटेशन का डिफरेंट डिफरेंट क्या है, काम है। हर एनोटेशन का एक डिफरेंट काम होगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई अभी? customer.java is clear to everyone? बिल्कुल है। एडवांस जेएसपी और सर्वलेट्स तो आई थिंक करे होंगे ना, वो तो सिलेबस में होते हैं हर्षित। आई थिंक जावा के सिलेबस में जेएसपी और सर्वलेट्स तो होते हैं। इफ यू नहीं सर नहीं करवाए, ओके। सो लेट मी शो यू जावा टी पॉइंट पे अगर आप कभी जाओ, जस्ट अ सेकेंड, जेएसपी करता रहे जेएसपी, ठीक है। स्क्रिप्टलेट्स है, ठीक है, इसमें आते हैं ये सारी चीजें। ओए तुम्हें क्या लगता है वो फॉरवर्ड सीसीए वाला असाइनमेंट चेंज करेगा क्या? नीचे आ रहे हैं, तो उसके बाद ये स्क्रिप्टलेट्स है। तू उसको मैसेज कर पहले, मेरे को कह रहा था ना बच्चे मेरे को मैसेज नहीं करते, बोल मेरे को किसी ने बोला था पहले आपसे मैसेज बात करके। तो अगर भंडारी को बोलता हूँ, भंडार मेरी तरफ से मैसेज। भंडारी को मत बोल, भंडारी को मत बोल, मेरा नाम लेके बोल उसको। मैंने उसकी बहुत लिद्द करी है उस दिन। तू ही बोल दे मैसेज करके। अबे तू बोल ना, तेरा नाम लेके मैं बोलूं, तू ही बोल दे। अबे बोल, यश ने मेरे को बोला था कि आपने उसको बोला कि अगर कोई बात हो तो मेरे को बोलिए। मैं उसको बोलूंगा सर यश ने मेरे को बोला था कि मैं आपको, तो मतलब क्लास ले लिया और जीएसपी वाले पेज में कॉल करूंगा तो मुझे वो पूरा एक्सटेंशन डॉट जावा एंड ऑल कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्टली इसको इसके साथ भी कॉल कर सकता हूँ, सिंपल नाम के साथ, ठीक है। ये देखो इस तरह से ये ऊपर आ रहा है, लोकल होस्ट सर्वलेट्स एनोटेशन, सिंपल लिखा डॉट जावा, जो कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, आपका कंटेंट वहां पे प्रिंट हो जाएगा। एक बार मतलब सर्वलेट्स और जेएसपी का कंटेंट अगर कर सकते हो यहाँ से रीड, यू कैन गो फॉर इट। जावा टी पॉइंट में आपको वो मिल जाएगा सारा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना इसको, क्योंकि हम तो वही यूज करेंगे अभी फॉर द टाइम। जो चीज यहाँ पे आएगी मैं वही एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जावा में जेएसपी में आता ही आता है, तो मैं तो वही एक्सप्लेन करूंगा जो इस केस में आ रहा है। हाँ मतलब अगर इसकी एलैबोरेट मतलब इसको पूरा तरीके से जानना है तो एक बार फिर जेएसपी कर लो थोड़ा सा, जेएसपी एंड सर्वलेट्स, ठीक है, गुड। सो वंशज आपको ये चीज क्लियर हुई? मैं दूसरा कंटेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो अब देखो यहाँ पे कस्टमर वाला मैंने क्या बताया था कि 4 लाइंस हैं। 4 लाइन में हमारा जो है वो जो है डेटा जो है वो अनमार्शल काम कर जाता है, ठीक है, या फिर डीमार्श कर देता है हमारा सारा डेटा, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेता है किसी एक्सएमएल फाइल से। तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें वो फाइल की लोकेशन देनी है, ठीक है, मतलब फाइल ऑब्जेक्ट बना के उसमें लोकेशन डाल देनी कि किस लोकेशन पे वो फाइल पड़ी है और फाइल भी डाल देनी उसमें। तो वो फाइल मुझे मिल गई, फिर मैंने जैक्सपी का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इंस्टांस क्रिएट कर लिया, ठीक है, कस्टमर क्लास को मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर अनमास्टर का एक इंस्टांस बना लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एंड देन अब मैं किस फाइल को, ये वाली फाइल को एज ए ऑब्जेक्ट पास करूंगा अनमार्श वाले ऑब्जेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट पास करूंगा। मेरा ये अनमार्शल है, उसमें मैंने फाइल पास कर दी और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, कस्टमर में, मतलब जो मैंने यहाँ पे बना रखी है क्लास, उसमें मैंने उसका टाइप कास्टिंग कर दी, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब मैंने टाइप कास्टिंग कर दी। सो अब टाइप कास्टिंग करने के बाद मैंने क्या किया, उसको अगर मैं कस्टमर सिंपल प्रिंट करवाता हूँ, इट विल प्रोवाइड यू व्हाट, इट विल प्रोवाइड यू द ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, कि ऑब्जेक्ट की क्या इंफॉर्मेशन है, कहाँ स्टोर है, क्या है। एंड व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग एज,
providing the content which we are having within this. So आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस लिस्ट होती है. So when we are write dot and press control plus this, so object dot attribute equal to customer dot images. वही है ऑब्जेक्ट. देखो ना, ये कस्टमर ऑब्जेक्ट ही बनाया मैंने. ये ऑब्जेक्ट ही बनाया. ऑब्जेक्ट डॉट में फिर मैं जो भी उसका एट्रीब्यूट, मतलब जो भी उसके अंदर मैंने वैल्यूज ले रखी है, एज, इंट, आईडी, नेम, ये तीनों चीजें हैं. ठीक है, ये देखो, अब मैं कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ पे, वही चीज मेरे को रिटर्न हो जाएगी. वो कहाँ से आएगी? वो फाइल से आएगी. अगर मैं दोबारा रन करता हूँ इसको, you guys can check what I get. IBM Private Limited. हाँ तू ही कराएगा. क्लियर हुआ ये? अभी तो सिर्फ टाइम मैं वेस्ट करा. मैं आपको दोबारा सेंड कर देता हूँ. जैसे तैसे बस 2:30 बजवा. 2:30 नहीं, सॉरी 12:30 बजे. ये डीमार्स का है और आपका जो थर्ड प्रैक्टिकल है वो 10 मिनट दोनों के बजवा. बीच पे ही है. 10 मिनट निकाल. मैंने इसीलिए सबको बोल दिया था कि इसकी एक्सटेंड करके डेट बनी आगे कर दी है. ठीक है. एंड नाउ जस्ट ए सेकेंड. अबे let me share the customer code also once again. किसका कोड है? कोड 1 कोड 2 के नाम से रखा. Okay guys, so my screen is visible to all of you. So मैंने अभी सरप्राइज टेस्ट जो है वो, सॉरी, मैं अभी विजिबल करने लगा हूँ. ठीक है, सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन है. यू हैव टू कंप्लीट विद इन टाइम स्लॉट. कितनी देर का है देखियो एक बार जरा. अगर इसने लंच में करा ना, मैं अकविंदर को कंप्लेंट कर दूंगा. सीधी बात. लंच में नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात है. 12:45 तक का टाइम, 12:45 तक का टाइम दिया सिर्फ. पूछो भाई इससे. तो मैंने सरप्राइज टेस्ट ऑन कर दिया है. पागल तो है ही ये आधा. या हो जाएगा.